Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Dear students, we are studying the fourth lesson of our syllabus, Be Smart. This lesson tells us about the goal setting and how we achieve success in our life. Because champions are not made in gym, they have something deep inside them which make them champion. We have already studied what are the SMART goals: specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. So we have already know that SMART goals help us to achieve the success in our life. They help us for goal setting. It is methodology of thinking that helps people reach success. So today we are going to learn and understand how to implement or execute this plan to achieve success in our life. So today we are going to learn and understand the last two paragraphs of our lesson. तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि चैम्पियंस जो है वो जिम में नहीं बनते, उनके अंदर कुछ इच्छा शक्ति होती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को स्ट्रैटेजी के अनुसार देखना है तो एक स्मार्ट गोल की एक स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट ने हमारे लिए रिकमेंड की है, और वो है 5 स्टेप्स वाली, जो हम लोगों ने कल तक देखी है कि स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा गोल, विशिष्ट होना चाहिए, ध्येय की मात्रा हम लोगों ने यानी मेजरेबल होना चाहिए, मापन योग्य, फिर हमारा गोल अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड सही समय में कंप्लीट करने वाला होना चाहिए। तो ये अगर 5 स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किए तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ, कोई भी उद्देश्य हम लोग ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग मेथडोलॉजी जो हमारी थिंकिंग की, वो जिस प्रकार से हम लोग लेके जा रहे हैं उस प्रकार से हमारा सेटिंग तो होगा, लेकिन फिर भी सक्सेस किस प्रकार से सक्सेस के लिए किस प्रकार से इन सब को एग्जीक्यूट करना है, हमारे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब स्ट्रैटेजी को कार्यवाही कैसे करनी है, वो जो है वो लास्ट 2 पैराग्राफ्स में देने की कोशिश की है राइटर ने। तो हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट 2 पैराग्राफ। एज यूजुअली you have to focus on last 2 paragraphs, page number 23. I am going to read the 2 paragraphs for you. Just focus on the paragraph. Just focus here. Part 5. Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. The quality and quantity of energy we put forth directly impact the results. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. Success is a walk in the dark, finding the right footing, precisely mastering the skills, and getting to the next place. All depends on how we approach and tackle the problem. The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. So, this was a loud reading of the paragraph for understanding. Now the next activity which you have to do is you have to read the paragraph silently and find out the difficult words. Here is a list on this page. Just focus on the difficult words. The first word is vision. Vision का मतलब क्या है? ध्येय दृष्टि, हम जो उद्देश्य रखते हैं। इंटेंशन, इंटेंशन मतलब हमारा उद्देश्य, एक से संबंधित ही शब्द है ये। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब क्या है? अनमोल, मूल्यवान। स्पार्क ऑफ होना मतलब क्या है? जागरूक होना। एंकरेज, एंकरेज होना मतलब प्रोत्साहन देना। डिफाइन, डिफाइन करना मतलब निश्चित करना। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मतलब अब व्यवहारिक रूप से अपने आप का स्वीकार करना, या फिर व्यवहारिक ही रूप आएगा इसका। टू एग्जीक्यूट करना मतलब कार्यवाही करना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब कोई नीति जो होती है ना, हमारी जो प्लानिंग की नीति होती है उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। इम्पैक्ट, प्रभाव।
ट्रम्पेट, ट्रम्पेट देखते हैं ना, तुरही, जिसमें से हवा जाती है तो आवाज़ साउंड निकलता है, दैट इज़ ट्रम्पेट। जब तक हवा डालेंगे नहीं तो साउंड निकलेगा नहीं। प्रिसाइजली, प्रिसाइजली मतलब निश्चित रूप से। टैकल मतलब सामना करना, और क्रैक मतलब दरार। तो इस प्रकार से डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेने के बाद आपको क्या करना है कि इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पैराग्राफ पर लिखना है। अगेन यू विल हैव टू रीड द होल पैराग्राफ, सो यू विल अंडरस्टैंड द होल पार्ट विदाउट माई हेल्प। सो please read the paragraph silently. Now I have made some questions for self assessment which you have to make for yourself. The first question here is, what are valuable? देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट आर वैल्यूएबल का मतलब क्या है? वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान या अनमोल। अनमोल क्या होता है हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखने जा रहे हैं। अनमोल क्या होता है देखो आया है, विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। हमारे विजन्स होते हैं, विजन मतलब क्या होता है? ध्येय दृष्टि। विशेष मतलब इच्छा, इंटेंशंस मतलब उद्दिष्ट, ड्रीम्स मतलब सपने। ऑल आर वैल्यूएबल। हमारे सपने, ध्येय दृष्टि, उद्देश्य, ये सब कुछ मूल्यवान है। समझ में आया? क्या मूल्यवान है? हमारी ध्येय दृष्टि, हमारी इच्छा, हमारी उद्देश्य तथा हमारे स्वप्न, ये सब कुछ क्या है? हमारे वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। तो नेक्स्ट सवाल तैयार होता है, देखो व्हाट डू दे डू। वो क्या काम करते हैं? व्हाट मतलब क्या, वो क्या काम करते हैं? हमारे जो सपने, हमारे जो उद्देश्य है, हमारी ध्येय दृष्टि है, वो क्या काम करते हैं? अगली लाइन में देखो, दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन। वो हमारा इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति जो है उसको वो क्या करते हैं? स्पार्क ऑफ करते हैं। स्पार्क ऑफ करना मतलब क्या है? जागृत करते हैं। एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और वेयर वी वांट टू रीच, हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए एक निश्चित दिशा देने का काम वो करते हैं। निश्चित दिशा देने के लिए वो हमें क्या करते हैं? एंकरेज करते, मतलब प्रोत्साहित करते हैं। समझ में आया? विजन, विशेष, इंटेंशंस और ड्रीम्स जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। वो हमारा कल्पना शक्ति को, इमेजिनेशन को स्पार्क ऑफ करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते कि हमें जहाँ जाना है वो दिशा निश्चित करने के लिए हमें वो क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। आया समझ में? सो ऑल दीज थिंग्स spark off our imagination, encourage us to define where we want to reach. तो इससे संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do we need to get there? हमें वहाँ जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मतलब विशेष कंप्लीट करने के लिए, इच्छा शक्ति कंप्लीट करने के लिए, हमारी उद्देश्य और सपने कंप्लीट करने के लिए, या हमारी कल्पना शक्ति को निश्चित करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचने के लिए? व्हाट डू वी नीड टू गेट देयर? वहाँ जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, ज़रा देखते हैं। इन ऑर्डर टू, थर्ड लाइन है देखो, इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रैटेजीज। हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या फिर हमारा गोल प्राप्त करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, उद्दिष्ट तक, वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ। हमारी जो मन में जो इमेजेस हैं कि हमें कुछ बनना है, वो इमेजेस जो है उसे व्यवहारिक रूप से कार्य में लाना है, उसकी कार्यवाही करनी है। और उसके लिए हमने जो प्लान बनाया है उसे क्या करना है? नीति जो हमारी है उसको कार्यान्वित करनी है। मतलब जो भी हमारी संकल्पना मन में है उस संकल्पना को हमें क्या करना है कि उसे एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी, उसकी एक प्लानिंग तैयार करना है और उस प्लानिंग को की कार्यवाही करना है, एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसकी कार्यवाही करनी है। आया समझ में? इस क्वेश्चन का मतलब देखो
कि व्हाट डू वी नीड टू गेट देयर, हमारा सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वी शुड बी डाउन टू अर्थ, हम लोगों ने हमारे मन में जो भी संकल्पनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उसको डाउन टू अर्थ व्यवहारिक रूप में लाना है, उतारना है, और एक अच्छा प्लानिंग करके उस प्लानिंग की कार्यवाही करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वी नीड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। हमें किसकी ज़रूरत होती है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। अगली लाइन में देखो, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। क्वालिटी मतलब हमारी गुणवत्ता, और क्वांटिटी मतलब गुणवत्ता की मात्रा। हमारी ऊर्जा, जो हमारे अंदर जो भी क्षमता है, ऊर्जा है, उसकी गुणवत्ता और गुणवत्ता की मात्रा दोनों भी हमें क्या करनी है? बढ़ानी है। और वो जितनी अच्छी होगी, वो जितनी ज़्यादा होगी, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रिजल्ट। यह इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? उसका रिजल्ट पर प्रभाव होता है। जो भी हमें गोल प्राप्त करना है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब जो प्रभाव है वो किसका पड़ता है? हमारी ऊर्जा की गुणवत्ता और गुणवत्ता की जो मात्रा है उसका प्रभाव हमारे गोल अचीव करने पर, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने पर पड़ता है। समझ में? सो द एनर्जी, द क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग हमारी ऊर्जा कितनी खर्च करते, कितनी अच्छी क्वालिटी की, कितनी गुणवत्ता भरी ऊर्जा हम लोग खर्च करते हैं और कितनी मात्रा में खर्च करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी गोल प्राप्त करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ लाइफ कंपेयर्ड विथ। हमारी ज़िंदगी जो है, लाइफ मतलब ज़िंदगी, वो कंपेयर की गई है किसी चीज़ के साथ। कंपेयर मतलब तुलना करना। तो किस चीज़ के साथ लाइफ की तुलना की है? देखो अगली लाइन में जवाब है, लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। जिंदगी एक ट्रम्पेट की तरह से है। ट्रम्पेट जानते ना, तुरही, एक साउंड निर्माण करने वाला एक वाद्य होता है, जिसके अंदर जब तक हम लोग हवा डालेंगे नहीं तब तक उसमें से क्या निकलने वाली नहीं है? साउंड निकलने वाला नहीं तो उस ट्रम्पेट को कोई वैल्यू नहीं होता। तुरही का खुद का कोई मोल नहीं है। उसके अंदर जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं, बाहर कुछ निकलने वाला नहीं है। सो लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। हमारी ज़िंदगी भी किसके जैसी है? ट्रम्पेट जैसी है। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, जब तक हम उसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं, वी कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट, तब तक हमें वापस अंदर बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब ज़िंदगी में कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ज़िंदगी ट्रम्पेट की जैसी है, नहीं तो फिर ऐसी ही पड़ी रहेगी। आप खुद कुछ करेंगे तो कुछ मिलने वाला है। सो ये पैराग्राफ बहुत ही सुंदर था। इस पैराग्राफ के पूरा आप लोगों ने समझ लिया होगा ऐसे मुझे लगता है। कि फिर भी हम लोग रिकैपिचुलेशन लेते हैं इस पैराग्राफ का, कि क्या होता है कि विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स, ये सब चीज़ें जो है हमारी वैल्यूएबल होती है। हमारी ध्येय, दृष्टि, इच्छा, उद्देश्य तथा स्वप्न जो है वो बहुत मूल्यवान होते। क्यों मूल्यवान होते? बिकॉज इट द स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति को वो क्या करते? जागृत करते हैं। और हमें क्या चाहिए वहाँ तक, वो उसे निश्चित करके वहाँ तक पहुँचने के लिए वो हमें क्या करते हैं? एंकरेज करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू गेट देम इन रियल लाइफ, ज़िंदगी में वो प्राप्त कराने के लिए व्हाट डू वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में जो भी है लाइफ इमेजेस है उसे डाउन टू अर्थ लाना है, उसे व्यवहार में लाना है, और उसका एक प्लानिंग करके, उसकी एक नीति तय करके उसकी कार्यवाही करना है, एग्जीक्यूट करना है। और ये करते समय हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? वी नीड एन एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी को उन एनर्जी की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और मात्रा भी, यानी बहुत ज़्यादा गुणवत्ता ऊर्जा हमें यूज़ करनी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊर्जा हमें यूज़ करनी है। क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे रिजल्ट पर। क्योंकि तुरंत हमें गोल मिल सकता है। अच्छी ऊर्जा डाली हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की और मन लगा के सब कुछ किया तो रिजल्ट तो मिलने वाला है। क्योंकि लाइफ इज़ लाइक अ ट्रम्पेट, ज़िंदगी एक ट्रम्पेट की तरह से, तुरही की तरह से, उसका खुद का कोई मोल नहीं होता। जब तक उसके अंदर आप कुछ नहीं डालोगे तब तक साउंड निकलने वाला नहीं है। तो लाइफ भी ऐसा ही है, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। सो विजन, विशेष,
intentions and dreams, all these things are valuable. अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं. What is success? सक्सेस सब लोग बोलते हैं कि कोशिश करो सक्सेस मिल जाएगा. तो क्या है ये सक्सेस? बहुत आसान चीज़ है क्या? कामयाबी, यश जिसे हम लोग कहते हैं, वो बहुत आसान है क्या? व्हाट इज़ अ सक्सेस? देखो फर्स्ट ही लाइन में दिया है, सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क. कितना बोले तो बहुत सिंपल वर्ड्स है, लेकिन उसमें गहरा मीनिंग है. सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क. अंधेरे में चलना मतलब सक्सेस है. अंधेरे में चलते चलो, कामयाबी मिलती जाएगी. सिर्फ चलते चलने से नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करना है आपको? फाइंडिंग द राइट फुटिंग. उसके लिए आपको क्या करनी है? राइट फुटिंग फाइंड करना है, मतलब सही कदम को खोजना है. अंधेरे में चलते चलते आपको ठीक तरीके से कदम रखने हैं, नीचे गिरने नहीं चाहिए, आप सही कदम रखना है. प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल. और अंधेरे में चलते चलते उस स्किल को आपको उस स्किल पर क्या करना है? मास्टर बनना है. मतलब क्या करना है आपको? कि आवश्यक कुशलताओं को सीखना है. अंधेरे में भी चलते समय जो हमारी आवश्यक कदम जहाँ रखने हैं, वो कदम हमें सीखने हैं कि कहाँ कैसे कदम रखना है. मतलब हमारी आवश्यक जो कुशलता है उनको हमें सीखना है. एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस. और अगला कदम उसके अनुसार रखना है. एंड ऑल दिस डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम. और ये सब कुछ किस पे डिपेंड है? हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम. जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उस प्रॉब्लम्स का हम सामना कैसे करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम संभालते कैसे, टैकल करना मतलब संभालते कैसे हैं, इस पर सब कुछ डिपेंड है. आया समझ में? सक्सेस क्या है? सक्सेस इज़ अ वॉक इन अ डार्क. अंधेरे में चलना है. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द राइट फुटिंग. सही कदम की खोज करनी कि कहाँ जाते समय हमारा पहला सही कदम क्या होगा, वो खोजना है. फिर उसके बाद उस तरीके से चलने के लिए आवश्यक तो जो कुशलता है उसका निश्चित रूप से आपको क्या करना है? सराव करना है, मास्टर बनना है. उस पर आवश्यक जो कुशलताएं हैं उनको सीखना है. और फिर अगला कदम आपको रखना है, यानी आगे चलते ही जाना है. जैसे पहला कदम रखा, फिर वो सीखते सीखते आप आगे चल रहे हो, तो रुकना नहीं, आगे ही चलता जाना. तो ये किस पर डिपेंड है? आने वाले प्रॉब्लम्स को आप किस प्रकार से फेस करते हो, कैसे सामना करते हो, कैसे हैंडल करते हो, कैसे टैकल करते हो, कैसे संभालते हो, ये सब का इकट्ठा नतीजा मतलब क्या है? सक्सेस है. तो सक्सेस क्या है वो आपके समझ में आया होगा. सक्सेस इज़ वॉकिंग इन द डार्कनेस एंड देन finding the right footing and then precisely mastering the skills and getting to the next place, which all depends on how we approach and handle or tackle the problem. ये सब कुछ उस पर डिपेंड है. लास्ट क्वेश्चन जो है लास्ट पैराग्राफ में से संबंधित आ रहा है. देखो, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस? सक्सेस तो प्राप्त करना है. विच इज़ द बेस्ट वे? कौन सा सही तरीका है सक्सेस प्राप्त करने का? देखो लास्ट पैराग्राफ के लास्ट पार्ट में आया है, द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम द वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. बहुत सिंपल है. देखो, द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, सबसे अच्छा मार्ग क्या है? जहाँ से हम वहाँ पहुँचने का सबसे उत्तम मार्ग, हमारा प्रत्येक कदम जो है. द बेस्ट वे टू गेट वेयर वी आर, सबसे अच्छा मार्ग हम जहाँ हैं, और वेयर वी वांट टू बी, और हम जहाँ जाना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. हमारा अगला कदम अच्छी तरीके से या उचित होना ज़रूरी है. हमें ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है, हम जहाँ हैं, जहाँ से आगे जाना है, जहाँ जाना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला कदम जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारी कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए. समझ में? वहाँ पहुँचने का सबसे उत्तम मार्ग अर्थात हमारा प्रत्येक कदम उचित दिशा में उठना चाहिए. आया समझ में? और व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम लोग अगला कदम उठा रहे हैं, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक. उस कदम ने हमें सपोर्ट करना है, उस कदम द्वारा हमें आधार मिलना चाहिए.
होल्ड करना है, मतलब पकड़ के रखना है, विदाउट अ क्रैक। विदाउट अ क्रैक मतलब बिना दरार के। यहाँ पे बिना दरार का मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे हम लोग अगला कदम रखने वाले हैं तो पहले वाले कदम ने हमें क्या करना है, आधार देना है, पकड़ के रखना है, ना कि हम डगमगाने नहीं चाहिए, हमें वो आधार देने वाला कदम होना चाहिए। सो द लास्ट क्वेश्चन से मैं, हाउ टू गेट द सक्सेस, द बेस्ट वे क्या है, द बेस्ट वे इज द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस फ्रॉम वेयर वी आर, हम जहाँ हैं, एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, और जहाँ हम जाना चाहते हैं, इज़ टू फाइंड द राइट फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। पहले तो उचित मार्ग को चुनना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, अगला कदम उठाओ, और अगला कदम आपका ऐसा होना चाहिए, इट शुड सपोर्ट यू, जो आपको क्या देने वाला होना चाहिए, आधार देने वाला होना चाहिए, ना कि वो आपको डगमगाने वाला हो। तो इस प्रकार से इस छोटे से पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज़ अ सक्सेस। सक्सेस जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ वॉक इन द डार्क, अंधेरे में चलना होता है। तो अंधेरे में चलते समय पहले आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द राइट फुटिंग, सही मार्ग चुनना है आपको। सही मार्ग चुनने के बाद प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल, वो मार्ग का निश्चित रूप से जो भी आपके स्किल की ज़रूरत है, कुशलताओं की जो ज़रूरत है, उसको आपको क्या करना है, निश्चित रूप से जो आवश्यकता है उसको सीखना है अच्छी तरीके से, एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और फिर अगला कदम उठाना है। यही सक्सेस होता है। पहले आपको कहाँ जाना है वो तय करो, उसको खोजो, फिर वो खोजने के बाद उसके लिए जो भी स्किल्स लगने, उसकी कुशलताएं लगने वाली है, उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर अगला कदम उठाओ। दैट इज़ सक्सेस। और ये सब कुछ किस पे डिपेंड है, बीच में रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से संभालते, हाउ यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स को आप किस प्रकार से सामना करते। मतलब अगर प्रॉब्लम देखकर डर कर पीछे आ गए तो सक्सेस कभी मिलेगा नहीं। तो उस प्रॉब्लम को आपको टैकल भी करना है और अप्रोच भी करना है, तो यू कैन गेट इजीली सक्सेस। और ये सक्सेस प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे बेस्ट वे क्या है, आप जहाँ हो और जहाँ जाना चाहते हो उसके लिए आपको पहले उचित कदम यानी उचित मार्ग को चुनना है। यू हैव टू फाइंड द फुटिंग ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप, आपको उचित मार्ग को चुनना है, और उसके बाद अगला कदम रखते रखते आगे ही चलना है, पीछे मुड़ने का नहीं। लेकिन आगे चलते समय योर नेक्स्ट स्टेप शुड सपोर्ट यू, इट शुड होल्ड यू, उसने आपको सपोर्ट करना है, होल्ड करना है, ना कि आपको डगमगाना है। यानी डर के मारे पीछे आने का नहीं है, कितना भी कठिन रास्ता, संकरा रास्ता क्यों ना हो, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, यू डोंट हैव टू जस्ट टेक योर सेल्फ बैक अगेंस्ट द प्रॉब्लम को देखकर आपको पीछे हटने का नहीं है। सो दैट इज़ सक्सेस। तो ये लेसन जो हम लोगों ने देखा अभी तक कि चैम्पियंस जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ उनकी ज़िंदगी में आती है लेकिन वो पीछे हटते नहीं हैं। चैम्पियंस हमेशा इन 5 स्टेप्स को जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है उनके द्वारा ही आगे चले होंगे, और हर कोई चैम्पियन इसी तरीके से आगे जाता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उनके दिमाग में जो विजन होता है उस विजन को वो कंटिन्यूसली स्पार्क ऑफ करते हैं, खुद को इंकरेज करते हैं। अपने आप को इंकरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये करने के बाद अपना जो प्लानिंग है वो प्लानिंग उनका तैयार होना चाहिए कि आगे कैसे चलना है, और वो प्लानिंग के अनुसार वो अपनी सारी कार्यवाही करते हैं। क्योंकि और कार्यवाही करते समय उनके पास बहुत सारी जो हर एक के पास एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का वो सही इस्तेमाल करते, गलत रास्ते पर जाते नहीं हैं वो। क्योंकि लाइफ क्या है, ट्रम्पेट जैसा है। आप जैसे जब तक अंदर कुछ हवा डालोगे नहीं तब तक सुंदर सा आवाज़ बाहर आने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से सक्सेस जो है हमारा वो वॉकिंग इन द डार्क है, अंधेरे में चलना है। लेकिन पहला कदम रखने के बाद उस आगे चलने का जो रास्ता है उसकी हमें क्या करनी है, अच्छी तरीके से प्रिसाइजली उसका मास्टर बनना है उस स्किल का, और फिर आगे ही चलते रहना है, पीछे हटने का नहीं। हर कदम ने आपको सहारा ही देना है, आधार देने का कार्य करना है, पीछे हटने का नहीं। तो ज़िंदगी में आप किसी भी प्लेयर की तरफ देखेंगे, कोई आपके हीरोज़ की तरफ देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी इसी प्रकार से आगे चलती गई है। वो अचानक से कोई चैम्पियन बने नहीं हैं। तो इस लेसन की तरफ आप देखेंगे
तो इसे आप, मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ परीक्षा के हिसाब से मत पढ़ो, इस लेसन को आप शांत मन से अपने खुद की ज़िंदगी के गोल सेटिंग के हिसाब से करो, ताकि आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव हो जाएंगे। जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे, क्योंकि बेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है, अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, गलत चीज़ों का सहारा न लेने की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू बच्चों, हम लोग लेसन यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इस लेसन को आपका एक काम है कि ये लेसन मैंने बहुत साइलेंटली लिया है, आपको शांत मन से इसको मिनिमम 4 बार इस लेसन को पढ़ना है। दैट्स इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि यू विल अंडरस्टैंड द लेसन, एट द सेम टाइम यू विल गेट टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड दिस वर्ड्स विल जस्ट कम इनटू योर वोकेबलरी। सारे आपके वोकेबलरी में वो पक्के हो जाएंगे एंड यू विल यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली रूटीन। आप डेली रूटीन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू आपकी जो कॉम्पिटेंस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस जो है, उसे बढ़ाने के लिए इसका फ़ायदा होगा। भाषा समृद्धि इससे होगी, इसलिए इस लेसन को मिनिमम 4 बार पढ़िए। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन के साथ हम लोग आगे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।